Hello students, class 8. Next topic is factorization of the form a square minus b square. This is a third type of factorize. In last video we discussed a square plus 2ab plus b square is equals to a plus b whole square. Okay, the square of the sum of two terms is equals to a square plus twice ab plus b square. This is known as trinomial square of a plus b whole square. Okay, that is sum of two term whole square is first term square, second term whole square plus twice of first term into second term. Then if we have to find a square minus 2ab plus b square, then it is equals to a minus b whole square. That is the square of difference of two term is equals to square of first term plus square of second term minus twice of first term into second term. So this is also trinomial square of the difference of two terms. And now we will discuss a square minus b square, that is square of first term minus square of second term. It will be equals to the square root of first term plus square root of second term. Okay, into square root of first term minus square root of second term. That is, if we have to find the square of first term minus second term, then one time we will add the first and second term and product with the difference of these two terms. So इसी फॉर्मूले को अपन अनदर टर्म में लिखते हैं. लेट अस फॉर स्मॉल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल्स टू a plus b into a minus b. Similarly, if we have to find p square minus q square, then p plus q into p minus q. So if the difference of square of two terms we have to find, that one time square root sum of the square root of first and second term product with difference of square root of first and second. So this is the very important formula. Difference of the square of two term will be sum of two term into sum of two term. That is, difference of square of two term will be the sum of two term into product with difference of two term. So आप अपनी भाषा में किस तरीके से आप इसको याद करेंगे, but these three formula. So once again मैं रिवाइज कर देता हूँ. एक आपका स्टार फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. Then second, a minus b whole square will be a square minus 2ab plus b square. And then third one is a square minus b square will be a plus b into a minus b. So these three formula, and today on the basis of third formula we will do the next exercise. So let us see the question number first. Question number first का part A, फैक्टोराइज y स्क्वायर माइनस 9. देखो y स्क्वायर माइनस 9 का आपको फैक्टर करना है, तो आप क्या कैसे लिखेंगे बेटे इसको? y स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर. देखो 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, बोर्ड पे देखो. 3 का स्क्वायर 9. अब देखिए y स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, 3 स्क्वायर सेकंड टर्म है. दोनों टर्म का स्क्वायर का डिफरेंस निकालना. तो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला आता है. क्या फॉर्मूला बेटे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इनटू a माइनस b. ओके, a प्लस b इनटू a माइनस b. तो यहाँ a की जगह y है, तो एक बार लिखूंगा y प्लस 3, एक बार लिखूंगा y माइनस 3. क्या किया आपने? पहले टर्म का स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 और
सॉरी y और 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या 3, तो एक बार y प्लस 3 को 8 किया, एक बार y में से 3 को सबट्रैक्ट किया और दोनों को प्रोडक्ट कर दिया। दिस इज द फैक्ट। क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट, b इज x स्क्वायर माइनस 25। देखिए अब अपन क्या करेंगे, x स्क्वायर को तो एज इट इज सेकंड 5 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इनटू a माइनस b। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, एक बार दोनों नंबर के रूट को ऐड करना, एक बार दोनों के रूट को सबट्रैक्ट करना, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इनटू x माइनस 5। दिस इज योर आंसर। देखिए सी क्वेश्चन, सी पार्ट इज 9x स्क्वायर माइनस 4। 9x स्क्वायर माइनस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटे, देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 9 को तो लिख लूंगा मैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और माइनस 4 को क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म, इसका रूट 3x है और इसका रूट 2 है। ओके, तो एक बार मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, तो 3x प्लस 2 इनटू 3x माइनस 2। दिस इज द factor of 9x square minus 4. Then D part, D is 49x square minus 64। देखो 49 को स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7x का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। ओके, 7x का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 7x, सेकंड टर्म क्या है 8, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, एक बार दोनों को ऐड करूंगा तो 7x प्लस 8, दूसरी बार 7x माइनस 8। इट इज क्लियर, यस और नो? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ई पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट इज माइनस 16 प्लस x स्क्वायर। देखिए समटाइम्स क्या होगा, दोनों टर्म डिसऑर्डर में भी हो सकती है, तो आपको ऑर्डर में भी लिखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे, इसको यूं लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 16। अब x स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां सामने लिख दे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक बार a प्लस b इनटू एक बार a माइनस b। दैट्स योर आंसर। इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्या करो, नहीं तो सर को गुस्सा आ जाता है। हाँ, p की पावर 6 माइनस 36। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, इसको दो टर्म के स्क्वायर के डिफरेंस फॉर्म में लिखना है, तो p की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, p क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, p की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म p क्यूब है, सेकंड टर्म 6 है, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस है, तो p क्यूब प्लस 6 इनटू p क्यूब माइनस 6, p क्यूब प्लस 6 इनटू p क्यूब माइनस 6, यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे जी पार्ट। जी क्या है, 144x की पावर 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ रहा है, धीरे धीरे दिमाग वाले क्वेश्चन। अब देखो 144 किसका रूट है बेटे, सॉरी 144 का रूट क्या है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 144 का स्क्वायर रूट तो हो गया 12। अब इनमें को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में लिखना, x की पावर 4 है तो उसको x स्क्वायर लिख सकता हूं और y स्क्वायर को y लिख दिया होल स्क्वायर। देखो यहां देखो, अब देखो 12 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 144, x के स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4 और y की पावर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, मतलब पहली टर्म क्या होगी 12x स्क्वायर y का होल स्क्वायर हो गया माइनस z स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a प्लस b इनटू a माइनस b, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर y प्लस ऑफ z इनटू 12x स्क्वायर y माइनस ऑफ z। दैट्स योर आंसर।
आ गया समझ में? 12x² y प्लस जेड इंटू 12x² y माइनस जेड, यही आंसर है। तो बहुत ही प्यारा सवाल है। आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट चल रहा है। x की पावर 6 माइनस y की पावर 4। अब देखो इसको दोनों टर्म के स्क्वायर लिखना है। तो 6 को क्या लिख सकता हूं? 6 को लिख सकता हूं x की पावर 3 का होल स्क्वायर। कहां कैसे? ये पावर और पावर, देखो x की पावर m होल पावर m क्या होता है? x की पावर m इंटू n। किसी भी नंबर के पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर का होल पावर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो x क्यूब का 3 2 जा 6, x की पावर 6 हो गया। ऐसे y की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए पहली टर्म का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म का होल स्क्वायर। तो पहली टर्म अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a कितना है? x की पावर क्यूब, b कितना है? y स्क्वायर। तो यहां क्या लिखेंगे बेटे? फॉर्मूला की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इनटू a माइनस b। ठीक है, तो एक बार अपन दोनों को x क्यूब प्लस y स्क्वायर इनटू x क्यूब माइनस y स्क्वायर। ओके, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस एक बार उन दोनों नंबर का सम इनटू का मतलब प्रोडक्ट, एक बार उन दोनों नंबर का डिफरेंस। दिस इज द फॉर्मूला। h के बाद में आई क्वेश्चन। देखो आई पार्ट क्या है? अच्छा सवाल है बेटे। a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस b स्क्वायर अपॉन 16। वेरी प्यारा क्वेश्चन। देखिए a स्क्वायर अपॉन 9, इसको होल स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटे? a अपॉन 3 का होल स्क्वायर। इधर देखो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस b अपॉन 4 का होल स्क्वायर। b अपॉन 4 का होल स्क्वायर कितना होगा? b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो गया? a/3, सेकंड टर्म कितना हो गया? b/4। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। एक बार दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो a/3 प्लस b/4, दूसरी बार a/3 माइनस b/4। तो एक बार दोनों का सम, एक बार दोनों का डिफरेंस। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नेक्स्ट that k, very simple question, 121 upon 9 m square minus n square। देखो अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों टर्म को होल स्क्वायर में लिखना है। तो मैं पहली टर्म का स्क्वायर रूट क्या हो गया? देखो 121 का स्क्वायर रूट तो 11, 9 का स्क्वायर रूट 3 और m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m, तो इसको मैं 11/3 m का होल स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस n का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इनटू a माइनस b। समझ में आ रहा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इनटू a माइनस b। अब इस फॉर्मूले को कंपेयर करें, a कितना है? 11/3m, b कितना है? n। तो एक बार ऐड करेंगे तो 11/3m प्लस ऑफ n, एक बार 11/3m माइनस ऑफ n। दैट्स योर आंसर। लास्ट l क्वेश्चन। k के बाद में l कितना है बेटे? बहुत ही प्यारा सवाल ये भी। अगेन -25 प्लस ऑफ b स्क्वायर अपॉन 64। क्या करेंगे? देखो b स्क्वायर अपॉन 64 माइनस 25 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए b स्क्वायर अपॉन 64 को तो b/8 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? b/8 का होल स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिखेंगे? 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए a कितना हो गया? b/8, b कितना है? 5, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला फिर लगाना। a स्क्वायर माइनस, एक बार दोनों को ऐड करना है तो b/8 में क्या ऐड करूंगा बेटे? 5। एक बार b/8 में से क्या घटाऊंगा? 5। तो b/8 प्लस 5 इनटू b/8 माइनस 5। दिस इज योर आंसर।
Okay, so this first question is very important question. Of the question is clear? चलो next. Now question number second question का फर्स्ट पार्ट है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो फर्स्ट ए में एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। देखिए ये जो पूरी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। कैसे, इधर समझो। एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x को, देखो ये 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 का होल स्क्वायर, तो 16 को लिख दिया मैंने 4 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a क्या है x, b क्या है 4, देखो 4 into 2 8x, ये 8x आ, इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहां a क्या है x, b क्या है 4, तो ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। ये पूरी जो टर्म है इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एज इट इज माइनस y स्क्वायर। अब देखो इसको, इस पूरे को मानूं मैं a, क्या मानूं बेटे, a स्क्वायर, और b को मैं मानूं, y को मानूं b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b इनटू a माइनस b। अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b इनटू a माइनस b। a क्या है x प्लस 4, तो x प्लस 4 में मैं ऐड करूंगा एक बार y को, एक बार मैं x प्लस 4 में से घटाऊंगा y को। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया। पहले अपन क्या कर दिया, ये है ट्राइनोमाइल स्क्वायर है। ट्राइनोमाइल स्क्वायर का मतलब ये जो फर्स्ट तीन टर्म है ये दो टर्म के सम का होल स्क्वायर है, जिसका फैक्टर अपन ने कैसे किया कि देखो x स्क्वायर का रूट x, 16 का रूट 4, ठीक है। अब देखो अगर a प्लस b का होल स्क्वायर है तो वो क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आया, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर और दुगुना ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो दो टर्म का होल स्क्वायर जो है वो क्या कहलाता, ट्राइनोमाइल स्क्वायर कहलाता। अब ये ट्राइनोमाइल स्क्वायर है तो ट्राइनोमाइल स्क्वायर का मतलब दो टर्म के सम का होल स्क्वायर, तो वो दो कौन सी टर्म है, x प्लस 4। समझ में आया, पक्का समझ में आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल था ये। फिर से देखिए बी पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है बेटे, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब a माइनस बी फर्स्ट टर्म है और x सेकंड टर्म, दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं a माइनस बी को कैपिटल A लिखूं और x को b लिखूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, एक बार a प्लस b होगा, एक बार a माइनस b होगा। तो मैं क्या करूंगा, a माइनस ऑफ b में एक बार ऐड करूंगा, एक बार a माइनस ऑफ b में से x को सबट्रैक्ट करूंगा, तो ये इसका फैक्टर हो गया। इट इज क्लियर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया अपन ने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है, एक बार दोनों टर्म को ऐड करना, एक बार दोनों टर्म को सबट्रैक्ट करना और दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना। देखिए सी पार्ट, सी पार्ट क्या है बेटे, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 6b प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ c स्क्वायर। देखो ये भी एक अच्छा सवाल है। इसमें क्या करेंगे अपन, b स्क्वायर माइनस 6b प्लस ऑफ 9, तो ये जो b स्क्वायर से लेकर के 9 तक की जो टर्म है ये a माइनस b का होल स्क्वायर। कैसे, देखो b स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं बेटे, b स्क्वायर माइनस 2 इनटू 9 का रूट क्या होता है 3, तो 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का होल स्क्वायर। अब देखो पहली टर्म का रूट b है और सेकंड टर्म का रूट क्या है 3, इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस अगर मिडिल टर्म है तो देखो 2 into 3 into b। अब देखो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस ट्वाइस पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, c स्क्वायर लास्ट में। तो ये क्या हो गया बेटे, ये पूरा हो गया
b माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस ऑफ c स्क्वायर। अब देखो b माइनस 3 को a मानो और c को मैं b मानूं तो दो टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस फिर क्या हो जाएगा बेटे, एक बार b माइनस 3 में c ऐड करना, एक बार b माइनस 3 में c को सब्ट्रैक्ट करना। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ये सर पक्का? हाँ, गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देन डी पार्ट जो है इसका, डी पार्ट है बेटे y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 8b माइनस 16। देखो इसको क्या लिखेंगे बेटे, इस वाले को, ये जो पहली तीन टर्म है ये ट्राइगोनोमेट्रिक स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा? देखो y स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, y का होल स्क्वायर माइनस देखो माइनस इस दोनों को मैं यहां से माइनस, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, b स्क्वायर प्लस 8b प्लस ऑफ 16। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लिया तो अंदर सब प्लस हो गया। अब देखो ये y का होल स्क्वायर तो एज इट इज है माइनस, इसको क्या लिखूंगा, देखो b स्क्वायर का रूट b तो b का होल स्क्वायर, 16 का रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो पहली टर्म का रूट b है, लास्ट सेकेंड टर्म का रूट क्या है 4। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस मिडिल टर्म है, देखो ट्वाइस इनटू b इनटू 4 तो ये क्या हो गया 4 2 जा 8b। ठीक है, तो ये हो गया y स्क्वायर तो एज इट इज ये हो गया b प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर डिफरेंस, तो एक बार क्या करूंगा y प्लस ऑफ b प्लस ऑफ 4, एक बार y माइनस ऑफ b माइनस 4। दैट्स योर आंसर। आया समझ में? तो बहुत ही प्यारा सवाल है। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, e part is x square minus c square minus 4 plus 4c। क्या करेंगे बेटे, देखो x स्क्वायर को तो एज इट इज रखा और बाकी में से माइनस कॉमन ले लिया तो c स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4c। इसको भी अपन क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर माइनस 4c प्लस ऑफ 4। ये क्या हो जाएगा, ये c माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। कैसे, x स्क्वायर को एज इट इज रखा, देखो ये क्या है c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू c इंटू 2 प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस ऑफ c माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, एक बार इन दोनों को ऐड करना तो x प्लस ऑफ c माइनस 2, एक बार x माइनस ऑफ c प्लस ऑफ 2। दैट्स योर आंसर। देखो जल्दी से, so the next question, f part क्या है बेटे, f is बहुत ही प्यारा सवाल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 10bc माइनस 25c स्क्वायर। देखिए बहुत अच्छा फैक्टर है, लास्ट के जो तीन टर्म है इनमें से अपन माइनस कॉमन लेंगे और वो फिर ट्राइगोनोमेट्रिक स्क्वायर बनेगा। कैसे, देखो a स्क्वायर को तो अपन ने एज इट इज रखा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये b स्क्वायर प्लस 10bc प्लस 25c स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे बेटे, देखो ये दो टर्म के सम का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा, a स्क्वायर को अपन ने एज इट इज रखा, इसको b का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू b इनटू 5c प्लस 5c का होल स्क्वायर। इधर देखो 25c स्क्वायर का रूट क्या होगा 5c, 5c का 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर और b स्क्वायर को b का होल स्क्वायर। अब देखो पहली टर्म का रूट b है और दूसरी टर्म का रूट 5c है। 5c देखो 5c और b,
5c और b को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 5 into तो 10 हो जाएगा, b into c ये मिडिल टर्म आ रहा। तो ये एक प्रकार से क्या बन रहा बेटे, a स्क्वायर माइनस ऑफ b प्लस 5c का होल स्क्वायर बन रहा। आप देखो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, a में एक बार b प्लस 5c को ऐड करना, एक बार a में b माइनस 5c को सबसेट करना, तो माइनस b माइनस 5c, दिस विल बी योर आंसर। सो ए गुड क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में पूरा हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, 5p स्क्वायर माइनस 5 है। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो 5 अगर अपन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा, p स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए ये 5 तो एज इट इज है बेटे, और p को माना a और 1 को माना b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या, एक बार p प्लस 1 एक बार p माइनस 1, दैट्स योर आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन। बी सेकंड क्वेश्चन है 8a स्क्वायर माइनस 32। अब अगर मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूं तो a स्क्वायर माइनस 4। अब इस 8 को तो मैंने एज इट इज रखा, a स्क्वायर को भी एज इट इज रखा, और 2 को 4 को क्या लिख दिया, 2 का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो 8 तो एज इट इज रहेगा और अंदर क्या करेंगे, a प्लस 2 इनटू a माइनस 2, दैट्स योर आंसर। आ गया समझ में? तो बहुत ही प्यारा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। देन सी पार्ट 16 माइनस 100 x स्क्वायर y स्क्वायर। देखो 16 को क्या लिख सकते हैं बेटे, 4 का होल स्क्वायर माइनस 100 को 10 xy का होल स्क्वायर। वापस देखिए 16 का मतलब क्या है, 4 स्क्वायर, 100 x स्क्वायर y स्क्वायर को 10 xy का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a क्या है 4, b क्या है 10xy, मतलब पहली टर्म का रूट 4 है, दूसरी टर्म का रूट क्या है 10xy है। तो जब दो टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना तो पहले दोनों टर्म का मैं रूट निकालूंगा, उन रूट को एक बार सम करूंगा, एक बार क्या करूंगा डिफरेंस करूंगा, प्रोडक्ट कर लूंगा। तो 4 प्लस ऑफ 10xy into 4 minus 10xy, that's your answer। 4 plus 10xy into 4 minus 10xy, that's your answer। देखिए D part, D is 2a cube b की पावर 4 minus 98ab square, 98ab square। समझ में आया? इसमें से अपन क्या करते हैं बेटे, 2ab स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2ab स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब देखो यहां से 2 बाहर आ गया, ab बाहर आ गया, यहां तो बचा a स्क्वायर, b स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बचा b स्क्वायर, माइनस 98 में से 2 बाहर आया तो 49 और b स्क्वायर भी बाहर आ गया तो केवल 49 ही तो बचा। अब इसको क्या करूंगा मैं बेटे, 2ab स्क्वायर को तो एज इट इज रखा, अंदर ab का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर इनटू ab प्लस 7 इनटू ab माइनस 7, दैट्स योर आंसर। ओके, सो हमने क्या किया बेटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में लाने के लिए अपन ने पहले क्या किया बेटे, 2a क्यूब b की पावर 4 माइनस 98ab स्क्वायर में से मैंने 2ab स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर देखो a क्यूब में से a बाहर आ गया तो a स्क्वायर बचा, b स्क्वायर b की पावर 4 में से b स्क्वायर बाहर आ गया तो b स्क्वायर बचा। अब a स्क्वायर b स्क्वायर को ab का होल स्क्वायर लिख दूंगा, और यहाँ ab स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, 98 में से 2 कॉमन आया तो 49।
अब 49 को 7 का होल स्क्वायर, तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म और पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट सी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 9 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। देखो फर्स्ट 3 टर्म को अगर मैं साथ में लेता हूं तो बेटे ये ट्राइनोमाइल स्क्वायर बनेगा। कैसे? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट है। कैसे? देखो जब 3 टर्म में से देखो c को मैं c का होल स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो 9 का रूट 3 है, c का रूट c स्क्वायर का रूट c है, तो 3 और c को मल्टीप्लाई करके अगर मैं ट्वाइस रूट मिडिल टर्म आ जाए, देखो 2 into c into 3, तो 3 to 6c आ रहा है 6c। इसका मतलब ये क्या है? ये c minus 3 का होल स्क्वायर है। ओके, तो ये अपन ने क्या किया? ट्राइनोमाइल स्क्वायर, दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर है ये। वापस खोलेंगे तो क्या होगा? पहली टर्म का स्क्वायर c स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ट्वाइस इनटू पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म, तो 3c इनटू 2 क्या होगा? माइनस 6c हो जाएगा। माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखिए c माइनस 3 को मान लूंगा a, तो a स्क्वायर और y को मान लिया b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b, तो ये हो जाएगा c माइनस 3 में एक बार मैंने y ऐड किया, एक बार c माइनस 3 में से y को सब्ट्रैक्ट किया। दैट्स योर आंसर। आया समझ में? बहुत ही प्यारा सवाल। आगे बढ़ते हैं। f है बेटे x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब देखिए ये जो पहली 3 टर्म है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, इसमें क्या कर रहे हैं बेटे अपन? केवल इन 3 टर्म में से, कौन सी में? इन 3 टर्म में से मैं अगर x कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं? x, तो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? केवल x बचेगा और यहां पर माइनस 4 बच जाएगा। समझ में आया? तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आगे समझ या नहीं आया? अब देखो, अब क्या ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? कैसे करेंगे? ये जो दोनों टर्म है, कौन सी? इन दोनों टर्म में से मैं क्या कॉमन ले लूं? x कॉमन ले लूं, और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले लूं? 4 कॉमन लूं, तभी ये फैक्टर नहीं बन रहा। तो अपन कैसे करेंगे बेटे? पहली टर्म में x क्यूब है, दूसरा x स्क्वायर है, तीसरी माइनस 4x है, फिर चौथी माइनस ऑफ 4 है। तो अपन क्या करते हैं बेटे कि x क्यूब माइन प्लस x स्क्वायर में से इन दोनों टर्म में से देखो, फिर से लिखते हैं सवाल को, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस 4 है। इसमें से अपन क्या कॉमन ले बेटे? देखो पहली 2 टर्म में से अपन कॉमन ले लेते हैं x। क्या कॉमन ले लेते हैं? x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। यहां से माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये भी बन रहेगा x प्लस 1। ठीक है, x को x स्क्वायर x कॉमन लिया तो x स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा? x प्लस 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? यहां देखो समझ में आया कि x क्यूब प्लस x स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन ले, यहां x बचा, यहां माइनस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 1। अब देखो ये x प्लस 1 फिर कॉमन आ रहा, तो x प्लस 1 को अपन कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 को, तो यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें x प्लस 1 को तो मैं एडजस्टिव ही रखूंगा, इस x स्क्वायर माइनस 4 को x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा।
आप देखो ये x प्लस वन एज इट इज है और ये दो टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस है, तो एक बार x प्लस टू और एक बार x माइनस टू। सो दिस इज द फैक्टर। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटे? दिस वाज द एप पार्ट। तो अपन पहले क्या इसमें से x कॉमन लेना चाह रहे थे और ट्रायगोनल स्क्वायर नहीं बन रहा, इसलिए अपन ने क्या किया, फर्स्ट टू टर्म में से x स्क्वायर कॉमन लिया तो x प्लस वन बच गया, यहां से माइनस फोर कॉमन लिया तो x प्लस वन, फिर ये x प्लस वन थ्रू आउट कॉमन आ गया तो x स्क्वायर माइनस फोर, x स्क्वायर माइनस फोर को x स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर लिख दिया, एक बार x प्लस टू इंटू x माइनस टू। देन लास्ट क्वेश्चन जी वो है बेटे m क्यूब माइनस mn स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए इस m क्यूब में से m क्यूब माइनस mn स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर में से देखो इसको अपन कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं कि m क्यूब और माइनस m स्क्वायर को साथ में m n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को साथ में ले लेते हैं। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है बेटे? m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो m माइनस वन बचेगा। क्या बचेगा? m माइनस वन। और यहां पर अगर मैं माइनस n स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा m और यहां बचेगा माइनस वन। कैसे? m स्क्वायर इंटू m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m तो माइनस n स्क्वायर m और माइनस n स्क्वायर माइनस वन, ये प्लस n स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये m माइनस वन ये थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में तो m माइनस वन तो एज इट इज रहेगा और यहां एक बार m प्लस n कर दिया, एक बार m माइनस n कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस वाज अबाउट द factorization of a square minus b square. Hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it. Thank you.